Now I'm going to tell about different type of list and how we represent the list in Python and how to perform the different type of operation using the list. So we are discussing about the string, fold, list and operations and why we say that list is mutable and how the elements write down in the list. So we are going to tell about the data type list is an order sequence which is the mutable and made up the one and more element. What is mean of this line? It means कि mutable it means कि we are edit, we are remove, we are change and we are perform all the operation in list and we are add the new element in the list and we are remove the new element in the list. Basically, and made up the one and more elements, unlike the string which consists of only one character, and the list can have element of different data types, such as integer, float, string, tuple, or even other lists. So, a list is very useful to group together elements of mixed data. Uh, A list is very useful to group mixed data. An element of list are included in square brackets and separated by the comma, like a string, indices, and list will also start from the zero. So basically, when we are study about the C language, in C language we are represent the element, we are allocate the element, and we are allocate the some memory of the element, and when we are want to know about the where the element is placed in memory, so we are just using the array. Array just define the place of element and place of memory occupied by that element. But basically, list is probably work according the array, but list is define the element and also list tell about place of the element in that sequence and that form. So basically, list having a different type of data type like float, string, tuple, and other type, and very useful because we are grouping the elements in the list and we are just mix up the different type of element in list. So we are basically common use in Python programming. List is basically represented in a square bracket. A square bracket having the lots of elements and every element is separated by the comma, and its indexing starts from the 0 to 1. So when we are represent the element in the list, indexing is by default is 0. By default is 0 because 0 indexing is means we are talking about the first element, we are talking about the second element and third up to 1. Onwards, and when we talk about the negative index, it means -1, -2, -3, and onwards. So there is the first example. List is the list of 6 even number. There is a even number and there is a square bracket. There is the name of list is list 1, and we are separate the all element with comma. So when we are write the program like this, list 1 is equal to square bracket 2 comma 4 comma 6 comma 8 comma 10 comma 12, print list 1 and 2 4 6 8 10 and 12. List 2 is the list of vowel. List 2 is a comma e comma I comma o comma u, and print list 2 a comma e comma I comma o comma u. And list 3 is the mixed data types. List 3 is the 100 23.5 and hello. You basically knew about it. List 1 is containing the only integer number, only even number, integer number, and list 2 is contain only the string type of values like a, e, I, u, and you also know that this is the vowels. And list 3 contain the different type of element like 100 is integer value, 23.5 is float value, and hello is also string. And list 4 is a list of list called the nested list. It means we are putting the multiple type of list inside the list, like there is a square bracket, physics comma 101, chemistry comma 202, maths comma 303, and there is inside a list we say that this is nested list. So we are represent the different type of element, different type of data type of element, and different type of element in the square bracket, and we are going to represent the nested list. Nested list means we are represent the bracket inside the brackets, and we are putting the element like this: physics comma 101, chemistry comma 202, maths comma 303, and you want to add on this to one number.
So I hope you clear it ki how to represent the elements in a list. And second point is accessing linked element in a list. The element of a list are accessed in the same way as character are the accessed in the string. Initializing the list 1 is equal to 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12. And list 1 0 is return the first element of list 1. And list 1 square bracket 3 return the fourth element of the list 1, like 8, because we are indexing the number is 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. And when we talk about the list 1 is the square bracket 0, we talk about the element of 2. And when we talk about the index number 3, we talk about the 0, 1, 2, 3, 8, because indexing number 8 is 3. Return the error as the index is out of the range if we are going to represent the list 1 is 15, because we get an array, because we get an error on that list because the index number 15 not exist in given list. So we also know about it कि when we are access the values in a list, we are just query about existing list, and existing list like this 0, 1, 2, 3, 4, 5, and we are not talking about the 7, we are not talking about the 9, we are not talking about the 10, 11, 15, so on, because that index value is not exist in this list. So whenever asked by the examiner, whenever asked in a paper, you just know about it कि if there is a list 115 values, so you just see the list and you just numbering the indexing. If your number is 15 exist in that list, it means the values exist. If your index value is not exist in a list, it means the value is not exist. So there is a error, return the error index is out of the range. And expression of resulting integer index of 1 plus 4, it means 4, 5. So we are going to represent the index like this 1 plus 4. 1 plus 4 means there is a 5, and 5 is index number is 12. So we get the output like 12. And when list is minus 1, return the first element from the right side. So left to right and right to left. Right to left in the sense कि we are negative indexing, and left to right is a positive indexing. So we are indexing minus 1 is 12, minus 2 is 10, minus 3 is 8, minus 4 is 6, minus 5 is 4, and minus 7 is 2. So we know that कि indexing 0 to 1 is the positive, and minus 1 to up to onward is the negative indexing. So whatever you are in examination, you are very much familiar about this scheme, how to represent the element in a list and how to indexing the element in the list. ठीक है, then आगे देखते हैं. If the length of the list is 1 is assigned to be length function, we are using the length function. What is length function? Length function basically define the elements, how many elements in that list and how many element using in your list. First 6 element is 6 element, because we know that there is 6 element, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements. So we are length getters. When we are going to use the length function, we are get the 6 element. We are get the output like 6 because there is 6 element in the brackets. Return the list element. Return the list element. Return the last element of this list is list n minus 1. List n minus 1. So it's equal to 12 because n minus 1 is at 12 minus 1. Basically we are number of n is 6 and 6 minus 1 is 5, and 5 position is 12. So we are get the output like this 12. So if you are n minus 1 using in the list, it means we are talking about what is n. N is the number of elements in list. Number of elements in the 6, there is 6 element, and 6 minus 1 is equal to 5, and 5 is the indexing number having the 12 number. So we are get the output like this 12. Return the last element of the list is 1, and n minus 1 is obviously what you just talk about the last element, and n minus 1 using the length of the function, and you are just talking about the number of elements in using the list. So return the first element of list 1 is the list 1 is minus n. What is mean of minus n? Minus n in the means we are talking about the value is minus, मतलब कि n minus 1 12, n मतलब आप रिवर्स में जाओगे, आपके स्टार्टिंग वैल्यूज जो होगी आपकी वो 12 हो जाएगी, तो फिर 2 हो जाएगी, because minus n represent the index number 0. So we say that these are 2 values. Lists are mutable. In the Python, lists are mutable. It means that the contents of the list can be changed after it has been created.
whenever you are going to create the list, you are just changing the item on the list, you are adding the new elements or removing the elements, you are just update your list because the list is mutable. And after creation of the list, you just perform all the operation regarding the list, and you have get a output like that. There is a list one, there is example list one, red, green, blue and orange. You see that list 1 3 is black, and list 1 is the pinned modify list 1 and red, green and blue, black. What is mean of 1 3? The list 1 is the list number and 3 is the index number. 0 1 2 0 1 2 3 is the index number is the green, and we are just modify the green, just remove the orange, just replace the orange to black. So we are using the black, and list 1 is modify, and we are take the output like this: red, green, blue and black. I hope you get it, how to remove the element in a list and how to access the element in a list and how to update the list. List is mutable because we are change the list after creation, so we say that the list is mutable. Next list operations. Data type list allow the manipulate it content through the various operations. So as 0 concatenations. Python allows us to join the two or more lists using the concatenations, and operator deprecates by the symbol of plus. List 1 is the list of the first 5 odd integer 1, list 1 1, 3, 5, 7, 9. List 2 the list of first 5 even integer, list 2 the 2, 4, 6, etc. You know that there is a 2 list 1 and 2, and both lists are different from each other and both having the different numbers of each element. List 1 is 1, 3, 5, 7, 9 and odd numbers, and list 2 is even number 2, 4, 6, 8, 9. We are going to perform the operation of concatenations. List 1 plus list 2 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. And list 3 is red, green and blue. List 4 is cyan, magenta and yellow and black. And list 3 plus list 4 red, green, blue, cyan, magenta, yellow and black. So we know that when we are adding the two lists, just adding the operation, just using the simple operator add operator to add the two lists, it means we are apply the concatenations in list. So whenever in examination asked by the examiner or asked by the paper, what is mean of concatenations, you know very well what is. The concatenation means we are adding the two lists using the add symbols. No, that is there is no change in the ongoing list. Is the list 1, list 2, list 3 and list 4 remain the same after the concatenations operation. If we want to merge the two lists, then we should use an assignment statement to assign the merged list to another list. The concatenation operator required that the operand should be of list type only. If we try to concatenate a list with the element of some other data types like this, okay, when we are going to add the more of the list 1, 1, 2, 3, list string where we see and list plus list string 2 type of error, because there is a different type of data structure in the list. When we are going to apply the concatenations on that list, it means कि we are apply there is one more condition follow, because one more condition is followed by you. The same data type, when we are see that both lists having same data type, means कि only numbers, only string, it means we are apply the concatenations. If that list having different data type, different type of element like float, like integer, like number, like a string, we are not apply the concatenation operation on that list, because concatenations having one condition to apply on list. What is condition? Condition is that whenever you are going to apply the concatenations on list, it must be that list is having same type of element on that list. If both lists having same type of element, you are smoothly apply the concatenation operation on that list. Then I'm going to tell about what is type of error. They can only the concatenation list, not the string of the list. Basically you see that list 1 is 1, 2, 3 number, string 2 is ABC and list 1 plus list 2. अब जब भी ऐसे करोगे ना आपको एरर मिलेगा. क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि हमेशा जो लिस्ट का टाइप होता है ना, लिस्ट का टाइप मतलब क्या,
अगर आपने लिस्ट लिख रहे हो, जो भी लिस्ट कर रहे हो आप, उस लिस्ट में क्या चीज़ होना चाहिए, ये होना चाहिए कि उस लिस्ट में जो डेटा होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप मतलब नंबर तो नंबर होना चाहिए, आपका नंबर हो तो नंबर फॉर्म में हो, स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको हमेशा एरर मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिपीटेशन। पाइथन अलाउ अस टू रेप्लिकेट अ लिस्ट यूजिंग द रिपीटेशंस ऑपरेटर टिपिकेटेड बाय द सिंबल इंटू। और आपसे बोला जाए एग्जाम में कि आपको ऐसा पैटर्न, आपको ऐसा लिस्ट का पैटर्न शो करना है, आपको ऐसा लिस्ट का पैटर्न दिखाना है जहाँ पे आप सेम सीक्वेंस को 2 बार टाइप करके लिख सकते हो। सेम सीक्वेंस को 2 बार टाइप करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुमने लिखा हेलो, फिर लिखा हेलो, फिर लिखा हेलो, तो मतलब जो 3 वर्ड्स हो गया एक सीक्वेंस में आ रहा है। मैंने लिखा दिस इज़ अ पाइथन, इट इज़ वेरी यूजफुल। we are also write these sentences in multiple line and we also repeat this sentence multiple time। आप रिपीट करना चाहते हो सेंटेंस को मल्टीपल टाइम, राइट करना चाहते हो मल्टीपल टाइम, या मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो एक ही सेंटेंस को 50 बार 60 बार 70 बार जितनी बार लिखना चाहते हो। ऐसे करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इस ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लगाया, पाइथन में रिपीटेशन लगा दिया। रिपीटेशन बेसिकली करता है क्या, रिपीटेशन ये करता है कि जब भी आप रिपीटेशन का यूज़ करोगे आपको सेम लिस्ट, जैसे लिस्ट आपका सेंटेंस में रिपीटेशन आप लगा रहे हो वैसे ही इस लिस्ट आपको जितने टाइम चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 100 टाइम, उतने टाइम आप उसको लिख सकते हो इन द सेंस उतने टाइम आपको आउटपुट मिल जाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन अलाउज टू रेप्लिकेटेड द लिस्ट यूजिंग द रिपीटेशन ऑपरेटर डेप्लिकेटेड बाय द सिंबल इंटू। आप सिंबल इंटू देखते हो, एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 रिपीटेड 4 टाइम्स 1 into 4 and hello hello hello। This means we know that hello is a word and we are just repeat the hello in 4 times। We are using the list 1 into 4। There is a symbol into because the into symbol is know that the repetition symbol in the list। Basically into means we are multiply the 2 numbers, but in this list we are not multiply, we are just 4 times 5 times going to print that list and that item, yeah, that words। So we are using the repetition on list। Okay, next is membership। The membership operator in what is in check if the element is present in the list and return true as return false। अगर जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमें पता करना हो कि 100 एलिमेंट्स का ये लिस्ट बना हुआ है या 200 एलिमेंट का लिस्ट बना हुआ है, मेरे पास कोई क्वेरी आ जाए, या मान लीजिए आपके पास 100 बच्चों का लिस्ट हो, 100 बच्चों की लिस्ट हो या 1000 बच्चों का लिस्ट हो आपके पास, तो आपको पूछे ऐसा बताइए मेरा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है। क्या आप पता कर सकते हो कि मेरा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, क्या मैं उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपको सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक ऑपरेटर इन का यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि वो बच्चा पर्टिकुलर स्टूडेंट उस लिस्ट में है कि नहीं है। आपने क्या लगाया, आपने एक लिस्ट क्रिएट किया 1, जिसमें आप पे 1000 स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने 3 एलिमेंट लिया, रेड ग्रीन ब्लू लिया है। आप चाहो तो 1000 200 500 स्टूडेंट के नेम ले सकते हो, या एक बहुत लार्ज डेटा टाइप बोलते हैं ना कि हम लोग पाइथन का बेसिकली यूज़ आप डेटा एनालिसिस में करते हो। डेटा एनालिसिस में पाइथन का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि डेटा जो एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास बहुत बल्क में डेटा है, आपको उस बल्क डेटा में से आपको कुछ फ़िल्टर करना होता है। फ़िल्टर क्या मतलब, ऐसा डेटा फ़िल्टर करना होता है जो आपको यूज़फुल, जो आपको चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर हमें डेटा उस टाइप में चाहिए तो हम उसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर कैसे करेंगे, फ़िल्टर हम ऐसे करेंगे कि जब हम डेटा अपना फ़िल्टर करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि हम उसमें ये देखेंगे कि हमने इन ऑपरेटर का यूज़ किया। हमने जैसे ही इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो बता देगा हमें कि क्या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर वो स्टूडेंट लिस्ट में नहीं होगा तो आप पता चल जाएगा, आपको होगा तो पता चल जाएगा आपको। बेसिकली यही होता है सिंपल सा चीज़ कि आपको बहुत बड़ी लिस्ट हो, बहुत बड़ा डेटा हो, उस पर्टिकुलर डेटा में कोई कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो, उस कीवर्ड के थ्रू आप ये देखना चाहते हो कि क्या वो कीवर्ड में मतलब उसके बच्चे का नाम हो, उसका रोल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ देखना ही है कि क्या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस लिस्ट में है कि नहीं, तो आप इन ऑपरेटर का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे सिंपल देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, लिस्ट 1 में रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ है, बोल रहा है ग्रीन इन लिस्ट 1, क्या ग्रीन लिस्ट 1 में है कि नहीं है, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, जैसे कौन इन लिस्ट 1, क्या नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो वर्ड आपका उस लिस्ट 1 में है कि नहीं, आपका आंसर आएगा फॉल्स। हमेशा इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में मिलता है आपको। आप उस बच्चे को बता सकते हो जो बच्चा आपसे क्वेरी कर रहा है कि सर मुझे बताइए क्या मैं उस लिस्ट में हूँ कि नहीं हूँ, आप आराम से बता सकते हो कि हाँ आप उस लिस्ट में हो।
इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप इसके लिए यूज़ करोगे इन ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट एल्स इट इज़ रिटर्न फॉल्स। अब ऐसी बात है, ट्रू एंड फॉल्स कब आएगा, ट्रू फॉल्स कब आएगा, जब वो लिस्ट एलिमेंट आपको उसमें होगा तो आपको ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, इस पर आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स। आपको बेसिकली आपको यस या नो में इसका रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो है कि नहीं है, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट उसमें पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है उसमें उस लिस्ट में है कि नहीं, इसके लिए आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइस। लाइक अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू लिस्ट। सेंटर ऑफ स्लाइसिंग इज बेसिकली, स्लाइसिंग मतलब कि आप रेंज पता कर सकते हो। रेंज मतलब क्या कि आप क्या वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको पता कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। लिखा है एलिमेंट फ्रॉम 0 टू इंक्लूड टू 7 एक्सक्लूड। इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि अगर आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर रहे हो तो बेसिकली वो जो एलिमेंट्स होगा ना आपका, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है वो एलिमेंट उसमें नहीं है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है उस एलिमेंट आपको इंक्लूड कर लिया आपने। तो जो आपने एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है, आपने एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया अगर आपने, तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि आप जो है ये पता कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 20 तक के सारे एलिमेंट चाहिए, 20 तक के सारे एलिमेंट चाहिए या 100 एलिमेंट हैं, तो बताइए कितने एलिमेंट हैं उसमें, बताइए मुझे। अगर मैं इससे ये क्वेरी आपसे पुटअप करती हूँ या फिर लास्ट के 2 एलिमेंट बता दीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पूछ रहे हैं आपसे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम ये देखते हैं इसका मतलब कि अब बहुत सारे एलिमेंट है, आपको फिल्टर लगाना है बहुत सारे एलिमेंट में, क्या वो एलिमेंट उस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप इसके लिए सिंपल क्या लगा सकते हो, मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता है आपको। ये लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0:7:1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 0 क्या है, ये आप बेसिकली मैं आपको रेंज फंक्शन पढ़ा रही थी, तो रेंज फंक्शन मैंने आपको बताया था कि रेंज फंक्शन बेसिकली होता है तो 3 एलिमेंट 3 पैरामीटर रेंज में हमेशा होते हैं। पहले पॉइंट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट को बोलते हैं स्टेप पॉइंट या डिफरेंस पॉइंट। फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट पोजीशन जो भी एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग आपको वहीं से रिप्रेजेंट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं पूछा था तो 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, वो नंबर है, अगर नंबर से स्टार्ट करेगा, वरना वो 0 से स्टार्ट करेगा। लास्ट एलिमेंट में क्या होता है, लास्ट में आपको वैसे स्टार्ट करेगा जो आपने पॉइंट दिया वो, अदरवाइज सारे के सारे 0 के बाद सारे को बाय डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे हम लिखा ना 0:7:1, मतलब 0 से स्टार्ट हो, 0 इंडेक्सिंग से एलिमेंट आपका स्टार्ट हो, 7 तक जाए, बट डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है। आपको देखो 0 पोजीशन पे आपका क्या है, 0 पे क्या है माइनस, आपका देखो 0 पे क्या है, 0 पे 0 है, 0 ले लिया, 11 ले लिया, 22 ले लिया, 33 ले लिया, 44 हो गया, 55 हो गया, एंड 56 हो गया, एंड 55 एंड 66 हो गया। 7 तक तो एलिमेंट हो गए। अब 1 का डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना मुझे 1 का होना चाहिए, इसलिए हम देखो 0, 11, 22, 33, 44, 1 का डिफरेंस अब में है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, अगर तो 0 के पास डिफरेंस कितना आएगा, 1 का माइनस कर देंगे, 1 2 का डिफरेंस करते जाएंगे, बिकॉज 0 के बाद ये 22 हो गया है, मतलब 1 का डिफरेंस हो गया है। 22 के बाद 44 हो जाएगा, 44 के बाद 66 हो जाएगा, 66 के बाद है तो 88 हो जाएगा, बट हम लिमिट क्या दे रही है, 2 तक का दिए हैं, और सिर्फ 7 तक का दिया है। तो 7 तक के इंडेक्स ही 7 तक के इंडेक्स को ही देखना है हमें। ठीक है, अगर 2 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस है इंडेक्स में, तो इस तरह से वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो दोनों एग्जाम्पल आपसे क्लियर हो रहा होगा। पहले एग्जाम्पल में हम कैसे कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। देन लिखा है इफ द स्टेप इज़ नॉट गिवन स्टेप इज़ टेकन एज वन। अगर मान लिया आपने स्टेप नहीं लिखा है, आपने स्टेप पॉइंट को ब्लैंक छोड़ दिया या लिख रहे हो, तो भी आपको 1 का डिस्टेंस लेके चलेगा, आपको 0, 11, 22, 33 6 तक बताएगा। इफ़ जेड इज़ पॉसिबल स्लाइसिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सो एक्स शुड बी लेस देन वाई। ठीक है ना। वॉट इज एक्स वाई जेड मतलब पहले पोजिशन में एक्स बोलते हैं, दूसरे को वाई बोलते हैं, तीसरे को जेड बोलते हैं। इसमें इसी के लिए आपको दिखा रहा है कि हमें तब क्या होना चाहिए, जेड जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए वाई से, तभी आकर रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे 22 लिखा है, 22 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमने 2 दिया है, 2 पे क्या है आपका 22 है, तो 22 से स्टार्टिंग हो रहा है, 7 तक जाएगा, मतलब 7 मतलब 77 तक जाएगा। डिफरेंस कितना चाहिए, 1 का चाहिए। तो देखो तो 22, 33, 44, 55, 66, 77 को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि पता है n-1 तक जाता है, इसलिए 77 आपका इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि n-1 तक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। अगर 7 to 1 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7 to 1 लिख दिया मैंने, स्टार्टिंग 7 से कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया। रॉन्ग इंडेक्सिंग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं रॉन्ग इसको, क्योंकि जो स्लाइसिंग होती है आपकी 7 से स्टार्ट तो हम कर सकते हैं, 2 का डिफरेंस भी कर सकते हैं हम लोग, इंड 1 पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स में नहीं चलता, हमेशा आपका फॉरवर्ड में चलता है, इसलिए इसको 1 पे इंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इंड पॉइंट आपका 2 पे नहीं हुआ, 7 है, 2 पे इंड नहीं हुआ, या तो 2 ये 7 के बाद 9 लिख सकते थे या 10 लिख सकते तो हो सकता था, लेकिन 7 से पहले रिवर्स वर्ड में नहीं चलता ये। The step is negative, slicing will be form of right to left, so start should be greater than stop, 7:2:1, get a like output 77, 66, 55, 54 and 33. If a stop is positive, this start is not given, then will be start is taken as 0. If a stop is not given, then stop will be taken as the length of list, 7:1, 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66. If the step is negative, start is not given, the start is taken by as -1, index as the last element. अब इसको ध्यान से देखो, आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम, अगर पॉजिटिव होता है इंडेक्स तो कैसे लेते हैं वैल्यूज़ को, निगेटिव होता है तो कैसे लेते हैं, अगर ब्लैंक होता है कोई वैल्यूज़ नहीं होती यहाँ पे तो हम कैसे लेते हैं, वो बता दिया मैंने आपको। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान समझनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप लिस्ट के बारे में बात करोगे, उसकी इंडेक्सिंग के बारे में बात करोगे जब भी आप, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कॉलन लिखा है तो उसका क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट पोजीशन में कोई नंबर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, फर्स्ट व सेकंड पोजीशन में कोई एलिमेंट नहीं लिखा है उसका क्या मतलब है, थर्ड पोजीशन में नंबर लिखा है तो क्या मतलब है, नहीं लिखा है तो क्या मतलब कहने मतलब आपको तीनों पैरामीटर के बारे में बहुत ध्यान समझना होगा। 3 पैरामीटर कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप पॉइंट। तो 3 पैरामीटर के बारे में अगर समझ जाते हो आप, कैसे इसका यूज़ करते हैं ये समझ जाते हो, आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई इसमें वो नहीं है। आप देखो, खुद देख लो कैसे एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नोट किया गया है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में देख लो एक बार, तो लिखा है स्टार्ट इज़ नॉट गिवन, अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया है तो स्टार्ट इज टेकन एज -1, इंडेक्स एट लिस्ट एलिमेंट। मतलब क्या होता है, अगर नहीं दिया है स्टार्टिंग पॉइंट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अगर इंडेक्सिंग पॉइंट नहीं दिया है, निगेटिव की बात करेंगे, अगर निगेटिव इंडेक्स की बात करेंगे उसमें पूछता है अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो कैसे स्टार्ट करो, -1 से स्टार्ट, मतलब आप राइट साइड के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, पूछ सकता है कि निगेटिव इंडेक्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप। देन लिखा है -5 -1, आप सिंपल 5 -1 लिखा आपने, तो 5 से स्टार्टिंग होगा 1 तक जाएगा, तो 5 से 99 आपको स्टार्ट होगा, 88, 77 और 66 स्टार्ट होगा। ठीक है ना। देखो आप एलिमेंट आपको ये था ना, ये एलिमेंट था आपका, ये एलिमेंट 99, 88, 77, 66 ऐसे जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1 से -5 से 1 स्टार्ट करेंगे तो कैसे जाएगा, 55, 44, 33, 22, 11 एंड 0 जाएगा। 1 मतलब -1 मतलब 0 से जाएगा। ठीक है। ट्रावर्सिंग द लिस्ट क्या होता है, वी कैन एक्सेस द ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट फॉर ट्रावर्स अ लिस्ट यूजिंग द फॉर लूप और द वाइल लूप। मतलब आपको लिस्ट ट्रावर्स करना, मतलब हर एक एलिमेंट पे जाना है, हर एलिमेंट का आपको आउटपुट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, आप। ठीक है। लिस्ट 1 रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो,
लिस्ट वन इज़ द प्रिंट आइटम, आप प्रिंट आइटम करोगे, आउटपुट मिलेगा आपको रेड ग्रीन ब्लू रेड मिलेगा। अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग द रेंज फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन। रेंज फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन फॉर आई रेंज इज द लेंथ लिस्ट वन, प्रिंट लिस्ट वन आई, आउटपुट रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो बताती हूँ कैसे हो रहा है। फिर सबसे पहले हमने क्या किया, फिर मैंने लिस्ट क्रिएट किया। हमें हर एक आइटम को ट्रावर्स करना है, मतलब हर एक आइटम पे जाना है, हर एक आइटम को प्रिंट करना, हर एक आइटम को जाना है, मतलब जाके मतलब उसको प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे रेड ग्रीन ब्लू येलो। ठीक है, सब देखो रेड ग्रीन ब्लू येलो हो गया आपका। लिस्ट ट्रावर्स किया मैंने लूप लगाया इसमें। तो कैसे हुआ देखो, तो मान लो ये लिस्ट दिया आपका, लेंथ फंक्शन रेंज फंक्शन दोनों लगाना है हमें। तो इस पर सिंपली में क्या किया, यहाँ पे देखो लूप लगा के कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखो तो फॉर लूप रेंज लगा दिया हमने, लेंथ फंक्शन लगा दिया, लेंथ बता दें मुझे, तो रेड ग्रीन ब्लू येलो आएगा, ट्रावर्स करेंगे। फिर देखो लिस्ट वन में क्या करें, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक आएगा, आई इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन लेंथ लिस्ट वन, प्रिंट लिस्ट वन आई। मतलब क्या करना है आपको, उस लेंथ फंक्शन यूज़ करें, क्योंकि लेंथ मतलब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, वो लेंथ पता चल जाता है। लेंथ फंक्शन लगाएंगे अगर, वो लूप तब तक चलाए जब तक लेंथ आपका सेटिस्फाई नहीं हो जाए, लेंथ आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए, उस तक पूरा आपका लेंथ वो लगाएगा। और जैसे ही आपकी चीज़ें हो जाएंगी तब तक आपका हो जाएंगी, मतलब इन द सेंस कि जब तक अपने वैल्यू को प्रिंट कराओगे आप, जैसे आप ट्रावर्स करोगे वैल्यू को प्रिंट कराओगे, वाइल लूप लगाओगे आप, आपको सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रावर्स बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत लंबी अगर लिस्ट होती है, बहुत बड़ी लिस्ट अगर होती है, तो हमें एक लिमिट तक, एक कंडीशन तक उस लिस्ट में कुछ आइटम एक्सेस करने होते हैं। अगर हमें उस मान लीजिए 1000 स्टूडेंट का लिस्ट है, अगर उसमें आपको 100 स्टूडेंट को फिल्टर करना है या 100 स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए आपको, तो आप वाइल लूप लगा के उस लिस्ट में लेंथ को मिनिमाइज़ करके आप सारे 100 एलिमेंट्स को, 100 स्टूडेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ तक हो गया था। रेड नेक्स्ट देखते हैं क्या, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ बहुत सारे फंक्शन हैं, हम लोग वन बाय वन सारे बताते हैं। लिखा है पहला लेंथ फंक्शन, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास एज द आर्गुमेंट, लिस्ट 1 10 20 30 40 50। आपको कितना मिल गया, लेंथ फंक्शन लगा आपने क्या मिल गया, 5 मिल गया। सिंपल लिस्ट लिखा आपने, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इज नो आर्गुमेंट इज पास्ट एंड क्रिएट अ लिस्ट सीक्वेंस इन द पास्ट एज आर्गुमेंट। आपने लिस्ट 1 लिखा, लिस्ट 2 लिखा, आपने एम्प्टी लिस्ट बनाया। आपको कुछ भी आप एम्प्टी लिस्ट भी कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये आपका लिस्ट में। ठीक है, append function, append is a single object passed as an argument at the end of the list and a single object can also be a list। लिस्ट 1 में क्या लिखा है, 10 20 30 40 लिखा है। मैंने लिस्ट 1 कॉमा append 50 लगा दिया, मतलब अपने मतलब आप इसमें इस एलिमेंट में जो लिस्ट है उसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। बेसिकली हम append फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए, या उसकी लास्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम append फंक्शन का यूज़ करते हैं।
तो हमने क्या किया, लिस्ट 1 में 50 ऐड कर दिया, अब वो 10 20 30 40 50 मिल गया। देन लिस्ट 1 10 20 13 40 एंड लिस्ट 1 एंड अपन फंक्शन 50 एंड 60। आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो 15 60 को, फिर आपका पूरा का पूरा क्या करेगा, एक लिस्ट को अलग कर देगा, मतलब उसको आप लिस्ट को आप पूरा सेपरेट कर सकते हो, न्यू लिस्ट एलिमेंट को उसमें आप ऐड कर सकते हो, दो एलिमेंट के साथ आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सटेंड क्या होता है, अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। आपको दिख रहा है एग्जांपल, लिस्ट 1 में क्या हो रहा है, वी आर जस्ट पुट द एलिमेंट ऑफ 10 20 एंड 30 and list 2 having the 40 and 50 and list 1 is extend the list 2. What is mean of extend, we are just proceed the values up to 30 up to 50, 10 20 30 40 and 50. It means we are just extrude all the elements in the single list, so we are using the extend function. Insert an element at a particular index in the list. If you want to add the one element in the particular index in the list, so using the insert function. List 1 is the 10 20 30 40 and 50. List 1 comma insert is the 2 and 25. List 1 is the 10 20 25 30 40. What is 2? 2 is the denote the index number and 25 is the element of that index number. So basically we are separate with the comma. Whenever we are using the index number 2 comma 25, it means 2 is the index point and 25 is the element of index 2. So you know that कि 10 is position 0, 1 is 20 position is 1 and 30 position is 2, but 2 is replaced by 25. So where you put the values 25 30 40 and 50 up so to 1. So list 1 insert the 0 to 5 positions. It means we say that कि we are put the value index number 0 हैविंग द 5 वैल्यूज़, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा 0 इंडेक्स है उस पर 5 वैल्यू पुट हो जाए, या 5 वैल्यू को हम इंडेक्स 0 पे पुट करना चाहते हैं या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप ऐसे 0,5 से लिख सकते हो। फिर आप कहता है काउंट फंक्शन, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इज अ गिवन एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट 1 10 20 30 10 40 10 लिस्ट 1 काउंट 10, मतलब आपको क्या करना है, आपको बताना ये है कि क्या जो 10 एलिमेंट है, जो 10 आपका एलिमेंट है वो कितनी बार उस लिस्ट में आया, आपको ये काउंट करना है। या मान लो पता करना हो कि आपको कोई स्टूडेंट आपको आपका है A1 A2 A3 जो भी आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, उस स्टूडेंट का नाम किस किस लिस्ट में है, या आपको पता करना हो कि कोई फैकल्टी वो कितने सब्जेक्ट किस किस जगह पढ़ाती है। आपको सिंपल एक सिंगल नाम है, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट पता करना है, किस डिपार्टमेंट में वर्क करती है, क्या काम करती है, इस तरह का लिस्ट बनाना है आपको, या इस तरह का लिस्ट पे पता करना हो तो सिंपल आप काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो। काउंट आपको ये बताता है कि बेसिकली वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार उस लिस्ट में आया है या कितनी बार लिस्ट में गया है, ये सारी चीज़ पता कर सकते हो आप। फिर इंडेक्स लिखा है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट 1 is 10 20 30 20 40 10 अकरेंस इन द सेंस कि 20 की अपीयरेंस कितनी बार हुई है उस लिस्ट में, ठीक है ना। देखो लिखा है ना, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। बोल रहा है कि 20 के जो इंडेक्स नंबर लिस्ट 1 इंडेक्स 20 पे जो एलिमेंट है वो क्या है, आपको बताइए मुझे। 90 इज़ नॉट इन द लिस्ट, 90 क्या आपके उस इंडेक्स में प्रेजेंट नहीं है, 20 क्या है प्रेजेंट है, 20 से इंडेक्स नंबर क्या है 1 है। मतलब किसी भी एलिमेंट का आपको इंडेक्स नंबर पता करना उस लिस्ट में तो आप ऐसे पता कर सकते हो, उस एलिमेंट का नाम उसका इंडेक्स पता कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स निकालना। देन रिमूव होता है आपको कोई एलिमेंट लिस्ट से निकालना है, हटाना है तो आप रिमूव फंक्शन यूज़ कर सकते हो। 10 20 40 50 and 30 लिस्ट 1 को मैं रिमूव 30 वैल्यू एरर द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज नॉट इन लिस्ट, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, सिंपल 10 20 30 40 एंड 50 हो जाएगी। आप वहाँ से वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। आपने लिखा लिस्ट 1 रिमूव 30, अब 30 उस लिस्ट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन 10 20 40 अब 32 टाइम्स आया है तो फर्स्ट जो टाइम्स आया पहला अपीयरेंस जो होता है पहले वही रिमूव हुआ, देन सेकंड अकरेंस, पहला अकरेंस रिमूव होता है देन सेकंड अकरेंस होता है। यानी पॉजिटिव इंडेक्स में जो पहले इंडेक्स पे नंबर आता है पहले वो वो हम रिमूव करते हैं देन दूसरा करते हैं। तो पहले आप ये सोचो कि मैम 30 लास्ट में लिखा है वो क्यों रिमूव हुआ है, इसलिए क्योंकि जो इंडेक्स 30 पहले आया था वैल्यू वही पहले रिमूव करेगा, बाद वाला करेगा। तो 30 पहले आया तो 30 को रिमूव कर दिया, बाद में हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। देन आपका आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या होता है आपका बेसिकली देख लो, लिखा है रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास एज द पैरामीटर टू द फंक्शन एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। इफ़ नो पैरामीटर इज गिवन देन इट रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट 1 लिखा 10 20 30 40 50 60 लिखा, लिस्ट 1 ने पॉप 3 लिखा 40 लिखा हमने, लिस्ट 1 में 10 20 30 50 एंड 40 60 लिखा हुआ है, लिस्ट 1 में 10 20 30 40 50 60 लिखा हुआ है, ठीक है। आप बेसिकली देख रहे हो
कि हमने क्या दिया, हमने पॉप 3 लिखा। पॉप 3 मतलब क्या हो रहा है, हमने 40 मिला हमें, मतलब 3 के जस्ट 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 40 है। अब देखो क्या हो रहा है, लिस्ट 1 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, लिस्ट 1 पॉप लिखा हमने 160 लिखा, मतलब क्या है कि इसके नेक्स्ट पोजीशन पे लिस्ट 1 में पॉप फंक्शन कहाँ लगाया गया, 60 पे लगाया, ठीक है ना। आपको लिस्ट 10, 20 बेसिकली मतलब क्या होता है, पॉप फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन, मतलब जो पैरामीटर में पास करेंगे उस इंडेक्स के साथ उसी पैरामीटर की वैल्यू आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट, और लिस्ट उसको रिमूव करेगा। एंड इफ़ नो पैरामीटर इज गिवन देन इट रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ऐसा कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं देंगे उसके पहले वाले में क्या पॉप 3 मैंने लिखा है, 3 पोजीशन लिखा है, तो 40 को वहाँ से रिमूव कर दिया उसने, आपको लिस्ट में 10, 20, 30, 56। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया, हमने पॉप फंक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया हमने, अब वहाँ कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं दिया, तो उसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिक को लास्ट एलिमेंट क्या करेगा, रिमूव कर देगा। दोनों कंडीशन देख लेना। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में हमने पॉप फंक्शन लगाया, हमने कोई इंडेक्स नंबर दे दिया, तो उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को डिलीट कर रहा है, डिलीट करना मतलब हटाना, रिमूव करना वहाँ से। और सेकंड वाले में हमने कोई फंक्शन नहीं दिया, हमने सिर्फ लिस्ट का नाम दिया, पॉप फंक्शन लगाया, तो ऑटोमेटिक को लास्ट में क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिवर्स क्या होता है, लिस्ट 1 30, 34, 66, 1, 2, 8, 9, 28, 99 लिखा हुआ है, लिस्ट 1 डॉट रिवर्स लिखा हुआ है, 99, 28, 89, 12, 66, 34 लिखा हुआ है। टाइगर, ज़ीब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट, डॉग। अब इसमें रिवर्स क्या करना है हमको, बेसिकली रिवर्स कैसे लगा सकते हैं हम लोग, देखो तो लिस्ट 1 हमने लगा, रिवर्स लगा दिया। रिवर्स कैसे लगाएंगे, जो आपको लास्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, देखो 99 पहला होगा, 28, 39, 12, 66, 34। तो रिवर्स मतलब आप सिंपल जानते हो रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स वाइज मतलब उसको बैकवर्ड तरीके से, बैकवर्ड में इसको लिखना, बैक तरीके से लिखना, ठीक है ना। तो जो लास्ट पोजीशन होगी फर्स्ट हो जाएगी, जो लास्ट सेकंड होगी वो सेकंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे बैक पोजीशन में हम एलिमेंट को लिखते हैं। ऐसे देखो लिखा है ना, टाइगर, ज़ीब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट, डॉग, आप रिवर्स लगा दी फंक्शन, रिवर्स वर्ड यहाँ पे लिख गया। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्टिंग करना मतलब वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हो आप किस चीज़ से, लिखा ना लिस्ट 1 शॉर्ट फंक्शन लगा दिया, शॉर्ट मेथड लगा दिया, तो बेसिकली क्या करें, जो अल्फ़ाबेट टाइप फॉर्म में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट कर देगा, जो CDELTZ आ गया। ऐसे ही शॉर्ट में नंबर में लगा दिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा, 34, 66, 12, 89, 28, 99, मतलब देखो 3 जो वैल्यूज़ आपकी है ना वो देखो लिखा है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, लिस्ट 1 99, 89, 66, 34, 28, 12। मतलब ये जो लिस्ट है इसमें कोई रिवर्स नहीं लगा है, हमने रिवर्स लगाया तो क्या मिला, 99 मिला, 89 मिला, 66 मिला, 34 मिला, 28 मिला एंड 12 मिला। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आप चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्टिंग का बेसिकली मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। शॉर्टिंग का मतलब ये होता है, आप जैसे चाहो उसको आप शॉर्टिंग आके कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्टोर। स्टोर लिखा है, इट टेक लिस्ट इज़ अ पैरामीटर एंड क्रिएट एज अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज इन द स्टोर ऑर्डर। लिस्ट 1 23, 45, 11, 67, 85, 56। लिस्ट 2 is sorted, लिस्ट 1 23, 45, 11, 67, 85, 56, 11, 23, 45, 56, 67, 85। ठीक है, आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, लिस्ट को स्टोर कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, लिस्ट 1 को स्टोर करना, लिस्ट 2 को स्टोर करना, आप उसको स्टोर कर सकते हो। फिर आपका आता है मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन। रिटर्न मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, रिटर्न मैक्सिमम और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। पहले इन क्या किया, लिस्ट किया था, मिन लगाया, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी थी, 12 थी, आपको 12 मिल गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 92 थी, वो मिल गया। सब मतलब आप सारे को ऐड करके आपको एक लिस्ट मिल गई। यह आपका बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिस्ट था। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो, ठीक है। क्या था बेसिकली लिस्ट मेथड ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ पूरा, देखती हूँ, बताती हूँ क्या क्या चीज़ था। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, पाइथन लिस्ट क्या होता है ये पढ़ाया, म्यूटेबल होता है वो पढ़ाया, लिस्ट में कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ये बताया, स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे करते हैं, नंबर फॉर्म में कैसे करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं बता दिया। फिर मैंने आपको एक्सेस एलिमेंट लिस्ट बता दिया, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू से थ्रू एक्सेस करते हैं। फिर मैंने बताया आपको निगेटिव वैल्यूज़, निगेटिव और पॉजिटिव में कैसे लिस्ट एक्सेस कर सकते हो आप लोग। लिस्ट को म्यूटेबल क्यों बोलते हैं ये बता दिया मैंने आपको। फिर लिस्ट ऑपरेशन बता दिया, लिस्ट ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्टेशन होता है, कॉन्टेशन होता है पहला, तो दूसरे में तो ऐड करना होता है, ऐड भी करते हैं तो कैसे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स होना चाहिए तो आपको ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप ऑफ होगा तो ऐड नहीं कर सकते हो, ये बताया मैंने आप लोग को। फिर रिपीटेशन फंक्शन बताया, रिपीटेशन कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिपीट कैसे वैल्यू कर सकते हो आप लोग मल्टीपल टाइम, वो बताया। मेंबरशिप बताया, मेंबरशिप मतलब होता है कि वो वैल्यूज़ उस लिस्ट में है कि नहीं, आपको ट्रू एंड फॉल्स में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
देन आपको बताया कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग मतलब आप बेसिकली रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हो किसमें, लिस्ट के अंदर। अब रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर थे यहाँ पे, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट और तीसरा आपका था स्टेप पॉइंट, डिफरेंस पॉइंट। उसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम उसे वैल्यू दे रहे हैं वो देखेंगे आप, ठीक है। देन हमने देखा क्या निगेटिव वैल्यू कैसे, निगेटिव में कैसे करता है, पॉजिटिव में कैसे करता है, ये बोल दिया मैंने, देख लिया हमने। ट्रावर्स किया हमने, ट्रावर्स के वैल्यू को मतलब 1 बाय 1 सारे वैल्यू को देखा हम लोगों ने, कैसे ट्रावर्स करते हैं, कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। फिर हमने मेथड्स देखा, सारे मेथड कौन कौन से मेथड लगे हैं। पहले लेंथ फंक्शन है, दूसरा लिस्ट है, अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉपअप फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, सॉर्टेड, ठीक है ना। सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या होता है, सॉर्ट मतलब आप इस अल्फ़ाबेटिकल को देख सॉर्ट करो, सॉर्टेड मतलब क्या होता है, आप जैसा चाहते हो सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सॉर्टेड में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, या तो आप सॉर्ट करना चाहते हो, दोनों में सब देख सकते हो ना। आप मिनिमम मैक्सिमम एंड सम फंक्शन लगाए, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और कोई डाउट होगा तो फिर मैं आगे आपको एक और नया वीडियो दूँगी जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।